ناظرین آداب، ای ٹی وی اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خاص بات، میں ہوں سید احمد جیلانی۔ پہلے نظر سرخیوں پر۔ تیسرے مرحلے کی پولنگ مجموعی طور سے پرامن، دہلی، یو پی اور کیرل میں ووٹروں نے دکھایا جوش و خروش، دیگر ریاستوں میں متوسط ووٹنگ۔ مختار انصاری بنارس پارلیمانی حلقے سے نہیں لڑیں گے چناؤ، مودی اور کیجریوال کے بیچ ہو سکتا ہے راست مقابلہ۔ حیدرآباد میں واقع انوار العلوم سوسائٹی کے تمام تعلیمی اداروں پر وقف بورڈ کا کنٹرول، سوسائٹی کے سیکرٹری کے خلاف مقدمہ درج۔ اتر پردیش میں 2 سال کے بعد اقلیتی کمیشن کی تشکیل نو، بے قصور نوجوانوں کی رہائی کے لیے نکالی جائے گی راہ، نئے چیئرمین کا عزم۔ اور مدھیہ پردیش کے حج کوٹے میں 344 عازمین کا اضافہ، لیکن کرناٹک کے حج کوٹے میں 2000 کی کٹوتی، عازمین مایوس۔ اور پہلے بڑی خبر۔ دہلی، ہریانہ، چندی گڑھ سمیت مرکز کے زیر انتظام 3 علاقوں میں ووٹنگ مجموعی طور پر پرامن رہی اور الیکشن کمیشن کے مطابق دہلی میں 64% ووٹنگ ریکارڈ کی گئی۔ گرمی کے باوجود ووٹروں میں زبردست جوش و خروش دیکھا گیا۔ دہلی کے 7، ہریانہ کے 10، چندی گڑھ، لکشدیپ اور انڈمان نکوبار کی ایک سیٹوں کے لیے ووٹنگ مجموعی طور پر پرامن رہی۔ دہلی کے 7 لوک سبھا حلقوں میں 150 امیدواروں کی قسمت ای وی ایم میں بند ہو گئی ہے۔ کپل سبل، اجے ماکن، سندیپ دیکشت، کرشن تیرتھ، ہرش وردھن، میناکشی لیکھی، راج موہن گاندھی، آشوتوش بسوجیت اور منوج تیواری کے حق میں ووٹروں کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ 16 مئی کو ووٹوں کی گنتی کے دن صاف ہوگا۔ دہلی کے تقریباً 1,70,00,000 ووٹروں نے جمہوریت کے جشن میں حصہ لیا۔ صبح سے ہی پولنگ مراکز پر ووٹروں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا اور جیسے جیسے سورج چڑھتا گیا، پولنگ مراکز پر لمبی لمبی قطاریں دیکھی گئیں۔ نائب صدر جمہوریہ حامد انصاری، کانگریس صدر سونیا گاندھی، کانگریس کے نائب صدر راہل گاندھی، پرینکا گاندھی، اروند کیجریوال، کپل سبل، ہرش وردھن، اجے ماکن اور چیف الیکشن کمشنر وی ایس سمپت اور دہلی کے چیف الیکٹورل افسر وجے دیو نے صبح سویرے ہی اپنے اپنے ووٹ ڈالے۔ پولنگ مراکز پر ووٹروں کی لمبی لمبی قطاروں سے یہ احساس ہو چلا تھا کہ اس بار دہلی میں ووٹنگ کا فیصد 2009 کے انتخابات سے بہتر رہے گا، اور وہی ہوا بھی۔ دہلی میں کچھ پولنگ بوتھوں سے ای وی ایم میں خرابی کی شکایتیں بھی آئیں، جسے وقت رہتے دور کر لیا گیا۔ دہلی میں آزادانہ و منصفانہ انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی کے سخت بندوبست کیے گئے تھے۔ 11,500 سے زائد پولنگ مراکز پر 161 فلائنگ اسکواڈ کے علاوہ 50,000 سیکیورٹی اہلکار اور چوکسی کیمرے نصب کیے گئے تھے۔ بیورو رپورٹ، ای ٹی وی نیوز۔ اور آئیے سیدھے آپ کو لے چلتے ہیں دہلی، جہاں پر آلوک شکلا ڈپٹی الیکشن کمشنر میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ Voters, the number of general observers is 1, expenditure observers is 1, micro observers is 56, 212 still cameras were deployed and webcasting was done from 167 locations. Epic percentage is 99.9%. The turnout for Chandigarh is likely to be again around 74%, because here also there are large number of queues and it is expected that the polling will probably continue till around 8 p.m. Last time turnout for Chandigarh was 64%. There is a couple of things which I want to also tell you about Chandigarh. Some very special arrangements were made by the Chief Electoral Officer and the District Election Officer of Chandigarh for the facilitation of voters. One interesting thing which was done was that each polling station was provided with a computer where whenever anybody cast their vote, the electoral roll was there, so the name was ticked off on the computer, which was connected to a server, so that at any point of time people knew how many persons have cast their vote. Not only that, the presiding officers were sending information every 15 minutes on the number of persons in the queue, and citizens could send a SMS to find out the length of the queue at any given point of time
at the polling station so that they could choose the time when they can go and cast their vote with the maximum convenience. So these are some of the very interesting things, and of course the electoral search facility etc. which has been done in other places was also done there. But the length of queue information being sent through SMS is a very interesting thing which Chandigarh did this time. Now let me come to Jharkhand. The state of Jharkhand is going to polls in 3 phases. Today, 4 parliamentary constituencies went to polls. The number of candidates in these 4 parliamentary constituencies is 62, out of which 57 are male and 5 are female. The total number of electors is 57,16,940, out of which 30,35,028 are male and 26,81,909 are female. Today, the number of polling stations which went to poll were 5,606, 4 general observers, 2 police observers, 7 expenditure observers, 1,388 micro observers, 1193 video cameras, 1179 still cameras, and 271 live webcasting. The epic and PR percentage is approximately 99.4%. Now in Jharkhand, the expected turnout is around 58%, which is again higher than the previous turnout. The previous turnout in Jharkhand in the last parliamentary election was 50.89%. So roughly 51% is likely to go up to 58% in this election. There were some small incidents in Jharkhand, particularly in Giridih district. The Maoists came and they damaged 4 electronic voting machines and took away the battery of 1 electronic voting machine. So in 5 places there were these small incidents. Other than that, the poll was by and large incident free. देख रहे थे आलोक शुक्ला, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर, जिस तरह ने बताया कि 67 लोकेशंस पर कैमरे लगाए गए। जहां तक उन्होंने चंडीगढ़ की बात की, खुसूसी इंतजामात वहां किए गए और वोटरों को सहूलियत दी गई थी। झारखंड में 3 महारों की पोलिंग का उन्होंने जिक्र किया और 5,606 पोलिंग मराकज वहां पर कायम है और 58% उन्होंने बताया। और वहां पर भी कैमरा का इंतजाम किया गया और लाइव वेबकास्टिंग की भी वहां पर सहूलतें दी गई थी। और आगे बढ़ते, दिल्ली के साबिक वजीर और कांग्रेस के रुकन असेंबली हारून यूसुफ ने दावा किया है कि दिल्ली में असल मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच होगा। ईटीवी से बातचीत करते हुए हारून यूसुफ ने फिरका परस्ती को सबसे बड़ा मसला करार दिया। मुकाबला जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जहां तक आम आदमी पार्टी का ताल्लुक है, आम आदमी पार्टी का वजूद खत्म हो गया है तकरीबन, क्योंकि जिस तरह के वादे, जिस तरीके से भ्रमित करने वाली राजनीति उन्होंने की, जिस तरह से आसमान के तारे दिल्ली के लोगों को देने की बात की और जो विकास पिछले 15 सालों में कांग्रेस की सरकार ने किया है वो रुक गया है 5 महीने से। आज कोई डेवलपमेंट का काम, विकास का काम नहीं चल रहा। आज ओल्ड एज पेंशन, राशन, ये तमाम समस्या अपार हैं और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं कि जो गरीबों के नारे लगाते थे, किस तरीके से उनका वोट लेकर उन्होंने उनके साथ धोखा किया। कांग्रेस के समर्थन में इमाम बुखारी साहब ने ऐलान किया था कि कांग्रेस को वोट दे। क्या इमाम बुखारी के ऐलान का असर हो रहा है? देखिए, बहुत सारे संगठन, तंजीमें, बहुत सारे मुख्तलिफ धर्मों के मानने वाले लोग हमेशा इस बात की अपील करते हैं कि जो सेक्युलर वोट है उनको तकसीम न होने दें, क्योंकि आज करप्शन सबसे ज्यादा अगर बड़ा मुद्दा है तो कम्युनलिज्म है। आज जिस तरीके से देश की माइनॉरिटीज अपने आप को थ्रेटन महसूस कर रही हैं, उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो मैं समझता हूं कि जो कम्युनल फोर्सेज हैं उनको कामयाब नहीं होंगे। कौमी एकता दल के उम्मीदवार मुख्तार अंसारी बनारस में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे।
इससे قبل मुख्तार अंसारी ने मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। अंसारी मुजरिमाना पस मंजर रखते हैं। कौमी एकता दल ने मुख्तार अंसारी के चुनाव न लड़ने की इतला दी है। अंसारी की दस्तबरदारी के बाद अब बनारस में मोदी और केजरीवाल के दरमियान रास्त मुकाबला हो सकता है। वाज़ेह रहे कि 2009 के चुनाव में मुख्तार अंसारी और मुरली मनोहर जोशी के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ था। अंसारी सिर्फ 17,000 वोटों के फर्क से हार गए थे। मगरबी उत्तर प्रदेश में इश्तियाल अंगेज तकरीर की पादाश में इलेक्शन कमीशन की वजाहत तलबी का सामना कर रहे बीजेपी लीडर अमित शाह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर रिट पिटीशन वापस ले ली है। अमित शाह के खिलाफ आरपीआर एक्ट 125 और आईपीसी की दफा 153 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अमित शाह ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने की दरख्वास्त दायर की थी। कि उनके अधिवक्ता द्वारा कि हमें रिट याचिका को वापस लेने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने रिट याचिका को वापस लेने की अनुमति इस शर्त पर दी कि हम दोबारा फाइल करने की अनुमति नहीं देंगे। ठीक नहीं, अब तो फिलहाल हाई कोर्ट नहीं अप्रोच कर सकते हैं। अब कहाँ जाना पड़ेगा? तो मैं समझता हूँ देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव। कहीं ना कहीं पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तार कर सकती है। हाईकोर्ट नहीं आ सकते। हाँ, फिलहाल इन एफआईआर के बेसिस पर नहीं आ सकते। इन दोनों एफआईआर, हाँ, जब तक उनमें कोई फर्दर डेवलपमेंट न हो, तमाम चीजें हैं कानूनी उसमें जो है, ठीक ना। इंतखाबात और सियासी हालात पर शायरों और अदीबों की भी गहरी नजर रहती है। चलिए जानते हैं मुल्क के मौजूदा सियासी मंजरनामा और सियासतदानों के मुतालिक कर्नाटक के मारूफ शायर शफीक आबिदी क्या कहते हैं। हिंदुस्तानियों का एक जज्बा इन 4 मिसरों में सुनिएगा कि सियासी साजिशों से इसका रुतबा घट नहीं सकता। ये जज्बा इश्क का है, मजहबों में बट नहीं सकता। कई सदियों ने हमको प्यार के रिश्ते में बांधा है, ये वो रिश्ता है जो तलवार से भी कट नहीं सकता। एक और पैगाम दूंगा, हर सेकुलर मिजाज जमहूरियत पसंद हिंदुस्तानी के दिल की एक ही आवाज है। कभी हम नफरतों के दायरों में बट नहीं सकते, कभी फिरका परस्ती के सबक को रट नहीं सकते। सदाकत का पिया है दूध हमने अपनी माओं से, हमारे पांव सच्चाई की राह से हट नहीं सकते। लेकिन हमारे सियासतदान नेताओं के नाम एक पैगाम कि सफेद पोश हो पर दिल तुम्हारा काला है। सफेद पोश हो पर दिल तुम्हारा काला है, तुम्हारी सोच का अंदाज भी निराला है। इंतखाबी माहौल का असर अदबी प्रोग्रामों पर भी नजर आ रहा है। दिल्ली के डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज में मुनक्कदा प्रोग्राम यूं तो गजल का प्रोग्राम था, लेकिन इसमें हालिया इंतखाबात का भी खाका खींचा गया, वो भी अदबी अंदाज में। इस मौके पर मारूफ फनकार मेहदी हसन को भी खराज अक़ीदत पेश किया गया। दिल्ली के डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज में पाकिस्तानी मारूफ गजल गुलकार मेहदी हसन के शागिर्द रहे उस्ताद मोइन खान को गजलिया प्रोग्राम के लिए मदऊ किया गया था। प्रोग्राम में मेहदी हसन की अहलिया के अलावा गुलकारी की दुनिया की कई मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। प्रोग्राम में मोइन खान ने अपनी गुलकारी के जौहर दिखाए और सामईन से दादो तहसीन हासिल की। इस प्रोग्राम के जरिए उस्ताद मेहदी हसन को उनकी गजलों के जरिए खराज अक़ीदत पेश किया गया। ताहम सामईन की असल दाद उस्ताद मेहदी हसन की अहलिया को उनके इंतखाबात के हवाले से पेश की गई शायरी को मिली। अब एक नज्म है जो स्टॉन्जान है, फिर इलेक्शन की आमद है। असल मैं ना सियासी शख्सियत हूँ, न किसी एक तरफ मेरा रुझान है, लेकिन एक सजायर है जो आप सुन के खुश होंगे। दिल से पहम ख्याल कहता है, फिर इलेक्शन की आमद है।
जाल फैला है फिर सियासत का, झूठे वादों की जलवा आराई, फिर सियासत ने ली है अंगड़ाई, जाग उठी है फिर मसीहाई, रैलियां हो रही हैं चार तरफ, मुजरिमों को मिली पजीराई। प्रोग्राम में उर्दू गजल और अदबी अंदाज में हसास जज्बों के इजहार की तहजीब के खत्म होने पर तशवीश का इजहार किया गया और इस बात पर जोर दिया गया कि नई नस्ल को मेयारी मौसीकी की जानिब राग़िब करना चाहिए। मैंने अपनी तकरीर में भी कहा था कि हम अपने स्टूडेंट्स को अच्छा म्यूज़िक, अच्छी गायकी, अच्छा गज़ल से इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं और हमारी क्लासिकल रूट्स क्या है, इंडियन रूट्स क्या है, हमें उस तरफ बच्चों को वापस लाना है। क्योंकि आज जो चारों तरफ शोर वाला म्यूज़िक है, एक वेस्टर्न तूफान है जो आ रहा है, ऐसे में हमें अपनी जड़ें, अपनी बुनियादें नहीं भूल देनी चाहिए। तो ये कोशिश इस बात की है कि बच्चों को अच्छे म्यूज़िक से, अच्छी गायकी से जोड़ा जाए। लोकसभा इंतखाबात का मौसम चल रहा है, ऐसे में गजलों के प्रोग्राम भी इंतखाबी असर से अछूते नहीं। ETV न्यूज नई दिल्ली। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मक़दम है। आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड ने अनवारुल उलूम एजुकेशनल सोसाइटी के तहत चलने वाले तालीमी इदारों को अपने कंट्रोल में ले लिया है। वक्फ बोर्ड के स्पेशल सेक्रेटरी शेख मोहम्मद इकबाल के मुताबिक अनवारुल उलूम तालीमी इदारों को कंट्रोल में लेने के अलावा सोसाइटी के सेक्रेटरी महबूब आलम खान के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई गई है। शेख इकबाल ने बताया कि अनवारुल उलूम एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से मंशाए वक्फ का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। क्योंकि शोकाज नोटिस देने के बावजूद भी और डॉक्यूमेंट उन्होंने जो मांगा था, महबूब आलम खान साहब जो सेक्रेटरी थे, हमने दिया था। इसके बावजूद उनसे कोई मुसलसिल फिर RTA या कोर्ट यही मांग रहे थे कि डॉक्यूमेंट ही मांग रहे थे। डॉक्यूमेंट सप्लाई करने के बावजूद कोई रिएक्शन नहीं रहा। तो कोर्ट का टाइम जो 2 वीक्स का था वो भी खत्म हो गया। रिएक्शन ना होने की वजह से, उनके तरफ से कोई ठोस एक्सप्लेनेशन ना रहने की वजह से हमने वक्फ बोर्ड ने इस इदारे को, अनवारुल उलूम कॉलेज को अपने डायरेक्ट मैनेजमेंट में लिया और ऑर्डर में ये भी कहा गया कि भाई इससे स्टूडेंट्स को या मैनेजमेंट जो भी है, टीचर्स, जो सिस्टम है वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम, वो बरकरार रहेगा और उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा। जमीयत उलमा हिंद के नुमाइंदों और मुस्लिम तंजीमों के लीडरों ने आज तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर पन्नाला लक्ष्मैया से मुलाकात की। जमीयत उलमा हिंद के नुमाइंदों ने मौलाना अब्दुल कवी की रिहाई के लिए इक़दामात करने और मुसलमानों को दरपेश देरीना मसाइल हल करने का मुतालबा किया। पन्नाला लक्ष्मैया ने मुसलमानों को दरपेश मसाइल को हल करने का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की सेकुलर आवाज कांग्रेस पार्टी के नजरियात को मुस्तहकम करती है। इस मौके पर कांग्रेस के MLC मोहम्मद अली शब्बीर और हाफिज पीर शब्बीर अहमद भी मौजूद थे। हमें इन्वाइट करके हमें एक मौका दिया आप लोगों से मिलने का। ये जिंदगी में very rare opportunity for people like me to see all the people here. So I cherish it, I remember it, I value it. I would like to focus in the rest of the time as PCC President of Telangana. जो बात यहाँ पेश किया गया है, डिमांड किया गया है, खर्च करने के लिए, कोशिश करने के लिए बोला है, वो सब चीजों के लिए मैं वादा देता हूँ, ये करता हूँ। उत्तर प्रदेश में 2 साल के बाद रियासती अक़लियती कमीशन की तश्कील हो गई है। कमीशन में एक चेयरमैन के अलावा 8 अरकान नामजद किए गए हैं। नए चेयरमैन ने ओहदे का चार्ज हासिल करने के बाद अक़लियतों, खासतौर पर बेकसूर नौजवानों को इंसाफ दिलाने का आज़म जाहिर किया है। उत्तर प्रदेश अक़लियती कमीशन के नए चेयरमैन शकील अहमद ने लखनऊ में कमीशन के सदर दफ्तर पहुंचकर अपने ओहदे का चार्ज हासिल किया। इस मौके पर बोर्ड के नए मेंबरान के साथ उनके हामी भी मौजूद थे। शकील अहमद का ताल्लुक बनारस से है और वो खिलाड़ी रह चुके हैं।
नए चेयरमैन ने ईटीवी से बातचीत करते हुए अक़लियती तबके को इंसाफ दिलाने के लिए टीम स्पिरिट के साथ काम करने का अज़्म ज़ाहिर किया। और जो पहली प्रायोरिटी हमारी होगी कि प्रदेश के मुख्तलिफ जिलों में जो मासूम बच्चे, बेगुनाह बच्चे जेल में बंद हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, उनका कोई पूछने वाला नहीं है, तो अपने तमाम साथियों के साथ उनकी इंक्वायरी कराएंगे और उन बेगुनाह बच्चों को जो जेलों में बंद हैं, उन बच्चों को सही इंसाफ दिलाने का भी काम करेंगे। कमीशन के नए अरकान भी मानते हैं कि रियासती कमीशन में तरमीम की वजह से ताखीर हुई है, लेकिन इन्होंने ज़ेरे इल्तिवा मामलों को तेजी से निपटाकर इस कमी को पूरा करने का इरादा जाहिर किया है। जो ताखीर की बात हो रही है, वो ताखीर कोई अहमियत नहीं रखती है। ये कमीशन उन तमाम चीज़ों को जल्द से जल्द निपटाते हुए, और जैसे अभी हमारे चेयरमैन साहब ने फरमाया, एक आपस में एक मुत्तहिद बॉडी के तौर पर इंशाल्लाह मसाइल को हल करने की। कर्नाटक रियासती हज कमेटी से इस साल महज 5000 आज़मीन हज ही सफर मुक़द्दस पर रवाना हो सकेंगे। इसकी वजह हज कमेटी के कोटे में कमी बताई जा रही है। वाज़ेह है कि कर्नाटक हज कमेटी के जरिए हर साल 7000 आज़मीन सफर हज पर रवाना हो रहे थे। बेंगलुरु में मरकजी हज कमेटी के नायब चेयरमैन और कर्नाटक हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद मरगूब अहमद ने कहा कि मुल्क के मजमूई हज कोटे में 25,000 की कमी आई है। मध्य प्रदेश को हज 2014 के लिए सेंट्रल पूल से 2,957 का कोटा दिया गया है। इस बात की जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश हज कमेटी के चेयरमैन सनोवर पटेल ने कहा कि इससे कबल रियासत के लिए 2,613 का कोटा दिया गया था, ताहम बाद में इसमें 344 ज़ईफ़ुल उम्र ज़ायरीन का इजाफा किया गया। कर्नाटक में 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात दे चुके अक़लियती तलबा को एक सुनहरा मौका फराहम किया गया है। मरकजी वजारत अक़लियती उमूर की स्कीम के तहत बीदर के शाहीन तालीमी इदारे ने रियासत भर में 200 अक़लियती तलबा को क़यामत आम के साथ मुफ्त तालीम फराहम करने का ऐलान किया है। PUC के शोबे साइंस में दी जाने वाली मुफ्त रिहायशी तालीम के लिए दाखिला इम्तिहानात 13 अप्रैल को होंगे। रांची की अंजुमन इस्लामिया ने गरीब और मुस्तहिक अवाम को तिब्बी सहूलियात फराहम करने का बेड़ा उठाया है। अंजुमन ने अस्पताल को मयारी बनाने का भी फैसला किया है। भोपाल से 200 किलोमीटर फासले पर वाक़े गुना इस जिले में मुस्लिम आबादी काबिल लिहाज है, लेकिन दारुल के करीब होने के बावजूद ये जिला बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इतना ही नहीं, यहाँ की वक्फ इमलाक की सूरत हाल इंतहाई मायूसकुन है। सूरत हाल यह है कि अब कब्रिस्तान भी महफूज नहीं है। गुना शहर भोपाल के करीब होने के बावजूद इस शहर में वक्फ की जमीनें महफूज नहीं हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कब्जा कब्रिस्तान पर है। इस शहर में लोगों ने अपने मकानात इस हद तक बना लिए हैं कि अपने लोगों को दफनाने के लिए जमीन कम पड़ रही है। बहुत सारे कब्जों पर कब्रिस्तानों पर कब्जे कर लिए गए और बहुत सारे लोगों ने उस जमीन को राजस्व में इंदराज करा करके बेच भी दिया गया। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने एक सर्वे जब कराया था, उस सर्वे के मुताबिक बहुत सारी जायदादों को शासकीय सेवा में जो लोग थे, जो सर्वे कर रहे थे, उन लोगों ने उसको उसमें इंदराज नहीं किया। इंदराज नहीं करने की वजह ये रही कि कुछ लोगों ने उस जायदाद को अपने नाम पर मिली भगत के साथ उसको बेच दिया, फरोख्त कर दिया गया। गुना के मुस्लिम तबके ने इस बात के लिए भोपाल वक्फ बोर्ड में शिकायत भी की, मगर इंतखाबात के चलते चेयरमैन और सेक्रेटरी के ना होने से सारे काम ठप पड़े हैं। मगर लोगों का कहना है कि चुनाव तो बहाना है, बोर्ड में ये हालात पिछले 5 सालों से है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की बात करें, वहां का तो सर ये हाल है कि आपके गए, आपने कहा, उनने आपके नोट ले लिए, आपकी जो भी वो है नोट कर ली या बता दी हमने, लेकिन कार्रवाई वहां से भी कुछ नहीं होती है। ऐसे ऐसे एविडेंस उनको दिए गए कि यहाँ पे ये प्रॉपर्टी इसका मिसयूज हो रहा है, लेकिन पता चला कि कोई और गया तो वो देन कोई रिजल्ट नहीं निकलता।
मध्य प्रदेश में वक्फ जायदादों पर कब्जा जात कोई नई बात नहीं। सितम ज़रीफ़ी ये है कि शिकायतों के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे अक़लियती तबके में शदीद नाराजगी है। ETV न्यूज़ भोपाल। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का 2 रोज़ा जश्न विलादत मनाया गया। इस मौके पर ज़ायरीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। जश्न की तकरीब में दरगाह के खुद्दाम और शोरा ने अपना कलाम पेश किया। मौलाना फजल हक ने गरीब नवाज की जिंदगी पर रोशनी डाली। खास बात में फिलहाल इतना ही। आदाब। खास बात को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट।